morning student, welcome back in this class, and this is the class 9 subject social science, and this is the chapter 4 of civics, and the topic name is electoral politics, and this is the lecture 4th. Student, firstly we will recall previous lecture, and previous lecture we have discussed about election procedure. And you know, in India, Lok Sabha and Vidhan Sabha election are held after every 5 years, and the same step should be followed by Election Commission of India, because they conduct election in India. And they first step is electoral constituency. Firstly, the country is to divide it into different area for the purpose of voting. And second, reserve constituency means some seats are reserved for scheduled castes and scheduled tribes, and at current 84 seats are for scheduled castes and 47 seats are reserved for scheduled tribes. And then voter list means the election commission prepare voter list, and it is also called electoral roll. And then nomination of candidate means every person who wishes to contest an election has to fill a nomination form and give some security, some money as a security deposit. So these are the step of election procedure. And next, today we will cover some topic. First, electoral campaign. Electoral campaign means in this step, in this feature, the political leader address election meeting. They held meeting, they contact their voter, they appeal their voter for voting. And next step is polling and counting of votes means polling means every person whose name in the voter list and can go in nearby polling booth. And next step is counting of votes. Last step of election is counting of votes. Election commission counts of votes and declare final result. And student, last we saw some question. That question I have assigned in previous lecture. So student, firstly we will discuss about electoral campaign. And you know, in a democratic country, the main purpose of election is to give people a chance to choose the representative, the government and the policies they prefer. Means for a free and fair election, and the main purpose of election to provide equality, provide freedom to people to choose their government, to choose their representative, and they want and their government and the policy they prefer. Means all opportunity given to the people to choose their representative. And campaign take place for a 2-week period between the announcement of the finalist. Means the campaign means the appeal take place for a 2 weeks between the announcement of finalist of candidate and the date of polling. Means जो campaign का जो time period है वो क्या है, final list के announcement के बाद और polling होने से पहले के 2 weeks के बीच में इनको time दिया जाता है, अपील करने का time दिया जाता है, promise करने का time दिया जाता है, मोटिवेट करने का टाइम दिया जाता है. तो इस प्रकार ये क्या है, फाइनल लिस्ट और पोलिंग डेट के बीच में जो टाइम पीरियड होता है वो लोगों को क्या है, मोटिवेट किया जाता है कि वो उनको किस बिहाफ पे इनको क्या दे, वोट दे. एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड द कैंडिडेट कंटेक्ट देयर वोटर्स, पॉलिटिकल लीडर एड्रेस इलेक्शन मीटिंग एंड पॉलिटिकल पार्टी मोबिलाइज देयर सपोर्टर. इस पीरियड के दौरान जो ये टाइम 2 वीक्स का टाइम पीरियड होता है, पॉलिटिकल लीडर hold meeting, political leader address election meeting and political party mobilize their supporter. They contact their voters, they appeal their voter for voting, they promised, they use some promise to their voter, they contact their voters. वो जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं इस समय क्या करते हैं, वोटर जो होते हैं उनको अपील करते हैं कि उनको किस बिहाफ पे वोट दिया जाए. बहुत सारी मीटिंग्स इसमें की जाती हैं. सपोर्टर को क्या है, सपोर्टर तक पहुंचा जाता है कि किस बिहाफ पे उनको क्या इशू, उनको सॉर्ट आउट किया जाता है, प्रॉब्लम को सुना जाता है, ताकि उनको क्या है, उनको एनहांस किया जाए, उनको मोटिवेट किया जाए कि उनको वो वोट दें. तो ये जो कैंपेन का टाइम पीरियड है वो लोगों को क्या है, वोटर से मिलने के लिए, उनको अपील करने के लिए टाइम दिया जाता है. एंड इन इलेक्शन कैंपेन पॉलिटिकल पार्टी ट्राई ऑन फोकस द पब्लिक अटेंशन ऑन सम इशू.
means in election campaign for voting, political party used to use and try on focus the public issue, means they enhance, they start attention on some social welfare, they attention on some and some social problem and some issue also, and they want the public to vote for their party on the basis। वो कुछ ना कुछ issues बनाते हैं, कुछ प्रॉमिस करते हैं, कुछ स्लोगन ऐसे बनाते हैं कि जिसके बिहार पे वो चाहते हैं कि इसके बिहार पे पब्लिक उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, वोट दे। इसलिए अपने पार्टी को विन करने के लिए वो डिफरेंट तरह के स्लोगन यूज़ करते हैं, इश्यूज उठाते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनको क्या मिले, वोट मिले। नेक्स्ट, डिफरेंट स्लोगन। बहुत सारे स्लोगन जो हैं, बहुत सारे मिनिस्टर्स ने यूज़ किए हैं, जो डिफरेंट स्लोगन्स आर यूज्ड बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज वेरियस इलेक्शन। फर्स्ट इज गरीबी हटाओ वाज द स्लोगन ऑफ द कांग्रेस पार्टी। गरीबी हटाओ स्लोगन वाज यूज्ड बाय इंदिरा गांधी इन द इलेक्शन ऑफ 1971 ऑफ द इलेक्शन ऑफ लोक सभा, एंड द पार्टी promised to prepare all policies to remove poverty from the country. The main purpose election means to remove poverty from the country. गरीबी हटाओ का जो सबसे बड़ा जो स्लोगन लिया गया था वो इंदिरा गांधी जी ने 1971 में लोकसभा के इलेक्शन में लिया था। उन्होंने कहा था कि अगर हमारी गवर्नमेंट बनेगी तो हम गरीबी हटाने के लिए बहुत सारी क्या है पॉलिसी बनाएंगे। तो उन्हें लोगों के साथ क्या प्रॉमिस किया था, दे प्रिपेयर ऑल पॉलिसीज टू रिमूव पॉवर्टी फ्रॉम द कंट्री। तो मेन स्लोगन यूज्ड बाय इंदिरा गांधी इज was गरीबी हटाओ in 1971। and next is save democracy। democracy was the slogan of Janata Party in the Lok Sabha election in 1977, and the party promised to undo the excess committee during the emergency and restore civil liberties। means save democracy slogan was used by जनता पार्टी इन द इलेक्शन ऑफ 1977। यानी लोकतंत्र को बचाने की जो प्रॉमिस की गई थी वो जनता पार्टी ने की गई थी, क्योंकि 1975 जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी 1971 टू 70 उनकी जो सरकार थी, बाद में क्या है 1975 टू 77 में इमरजेंसी स्टार्ट कर दी थी। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू कर दी थी पूरे भारत में, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुई थी। इमरजेंसी का मतलब होता है कि अगर कभी इसमें सारी पावर प्राइम मिनिस्टर के पास होती है और इसमें क्या मीडिया को क्या है, मीडिया कंट्रोल किया जाता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ को इसमें क्या कंट्रोल किया जाता है, लोकसभा को इसमें डिसॉल्व कर दिया जाता है, यानी जो सारी पावर है प्राइम मिनिस्टर की थी। तो इसी वजह से जो जनता पार्टी थी वो क्या है पावर में आए, वो चाहती थी कि वो हमारी पार्टी क्या विन होए, और वो चाहते थे कि हम अगर पावर में आएंगे तो हम सबको क्या करेंगे, डेमोक्रेसी प्रोवाइड करेंगे। और उनका मेन पर्पस था ड्यूरिंग द इमरजेंसी एंड द रिस्टोर सिविल लिबर्टीज मीन सबको आज़ादी प्रोवाइड की जाएगी, यानी सभी को क्या है फ्रीडम प्रोवाइड की जाएगी, जो इमरजेंसी के टाइम से लोगों के से क्या है कांग्रेस पार्टी ने उनसे क्या करी थी, छीन ली थी। उनके पास खुद की कोई भी लिबर्टी नहीं थी। तो उनका मेन पर्पस था सेव डेमोक्रेसी इन द इलेक्शन ऑफ 1977। नेक्स्ट, लैंड टू द टीलर। Tiller was the slogan used by Left Front. Left Front is the party of West Bengal, and main purpose of West Bengal means provide land to the poor farmer, and so the slogan was used by West Bengal is land to the tiller। means जो ज़मीन है, जो ज़मीन जोतते हैं उन्हीं को क्या, जो ज़मीन पे काम करते हैं उनको ही ज़मीन प्रोवाइड करने का मेन जो स्लोगन है वेस्ट बंगाल में लेफ्ट फ्रंट नाम की पार्टीज़ ने क्या किया था, यूज़ किया था, जो इलेक्शन 1977 में हेल्ड किए गए थे। तो उनका मेन पर्पस था लैंड टू द टीलर। टीलर मीन्स फार्मर। And next is protect the self-respect of Telugus was a slogan used by N.T. Rama Rao. Okay, and the leader of Telugu Desam party, they use self-respect for Telugu in the Andhra Pradesh and and the assembly in election 1983 में जो वहाँ पे आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी है, उनका मेन पर्पस था टू प्रोवाइड सेल्फ रिस्पेक्ट, टू प्रोटेक्ट सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ तेलुगुज, यानी कि तेलुगु को उनको सेल्फ रिस्पेक्ट करना, सबको क्या इक्वलिटी प्रोवाइड करना, रिस्पेक्ट प्रोवाइड करना, सबकी रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करने का मेन जो स्लोगन यूज़ किया गया था वो क्या था इन 1983 में।
by N.T. Rama Rao. So these are slogan used by different political party to promote their voters and to enhance their voting. And next, election laws. Election laws means some laws are provided by election commission, and in a democracy it is the best to leave the political party and candidate free to conduct their election campaign. डेमोक्रेसी में मेन तो यही होता है कि सबको फ्री छोड़ दिया जाता है, किसी प्रकार के क्या करें, इलेक्शन कंपेन करें, लोगों से प्रॉमिस करें, उनको किस तरह हैंडल करें। लेकिन फिर भी इलेक्शन कमीशन ने कुछ इलेक्शन लॉज बनाए गए हैं कि जिनके बिहाफ पे उनको क्या है, उनको कंट्रोल करना पड़ता है एंड रेगुलेट करना पड़ता है कि कोई भी पार्टी है या कोई भी कैंडिडेट है अपनी पावर का मिसयूज़ ना करे। इसलिए उन्होंने क्या है, इलेक्शन में कुछ लॉज बनाए हैं इलेक्शन कमीशन ने। फर्स्ट है, नो पार्टी कैन ब्राइब और थ्रेटन वोटर, मतलब कोई, नो पार्टी कैन थ्रेट एंड नो पार्टी कैन प्रोवाइड सम फाइनेंशियल हेल्प टू द पुअर। एंड मीन्स कि कोई भी पार्टी किसी भी पुअर पीपल को डरा धमका के या पैसे खिला के वोट नहीं लेगी। नो पार्टी कैन ब्राइब और थ्रेटन वोटर एंड अपील टू देम इन द नेम और कास्ट, और कोई भी पार्टी उनको उनके कास्ट के आधार पर या रिलीजन के आधार पर वोट नहीं लेगी। पीपल कैन चूज एनी लीडर, कैन चूज एनी रिप्रेजेंटेटिव एंड नो एनी लीडर अपील टू दैम इन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन, उनके धर्म और उनकी जाति के आधार पर उनसे कोई भी वोट की अपील नहीं की जाएगी। एंड यूज़ गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर इलेक्शन कैंपेन, यानी अपने को प्रमोट करने के लिए या इलेक्शन में कैंपेन करने के लिए कोई भी गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट के कोई भी पार्टी है वो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज को यूज़ नहीं करेगी, गवर्नमेंट बिल्डिंग को नहीं, गवर्नमेंट के व्हीकल्स को कोई भी पार्टी यूज़ नहीं कर सकती। और एक नेक्स्ट जो है वो है, स्पेंड मोर देन ₹25 लाख इन ए कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर ए लोकसभा इलेक्शन एंड ऑन ₹10 लाख इन ए कॉन्स्टिट्यूंसी इन असेंबली इलेक्शन। यानी कि उन्होंने क्या है, इलेक्शन कमीशन ने किसी भी करप्शन को कम करने के लिए उन्होंने कहा कि कम से कम पैसा खर्च होना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा है कि लोकसभा के इलेक्शन के लिए 25 लाख से ज़्यादा स्पेंड नहीं करने चाहिए, और इलेक्शन और स्टेट असेंबली में 10 लाख से ज़्यादा क्या है पैसे उसमें स्पेंड नहीं करने चाहिए। अगर फिर भी कोई इससे ज़्यादा करता है तो उसको क्या है, इलेक्शन से या उसको क्या है, पार्टी से क्या है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। The election can be rejected by the court even after they have been declared elected. ओके कि अगर वो इलेक्शन में विन भी कर जाता है, अगर उसमें फिर भी क्या है, उसने ऐसा कोई मिसयूज़ किया है तो उसको फिर अपनी पावर से रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो दीज आर द लॉ ऑफ इलेक्शन। नेक्स्ट इज कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट मीन्स it is norm fixed by election commission, and it is a set of norms as prescribed by the election commission to be followed by all political party in our country for contesting election or during campaign. Code of conduct means rules and regulation are prepared by election commission and every political party should be follow of code of conduct. यानी इसमें रूल्स और रेगुलेशंस एंड सेट ऑफ नॉर्म्स हैं जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा क्या है, फॉलो किए जाते हैं, बनाए गए हैं, और हर पॉलिटिकल पार्टीज़ को क्या करने पड़ते हैं, फॉलो करने पड़ते हैं। जो भी इलेक्शन लड़ता है या कोई भी इलेक्शन में कंटेस्ट करता है या कंपेन करता है तो उनको क्या है, कुछ रूल और रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है, उसको कहा जाता है कोड ऑफ कंडक्ट इन इलेक्शन। फर्स्ट, यूज़ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शन प्रोपेगेंडा, कि किसी भी वर्शिप प्लेस को क्या है, प्रोपेगेंडा यानी कि इलेक्शन के प्रचार, प्रोपेगेंडा यानी कि उसकी एडवर्टाइजमेंट को यूज़ नहीं कर सकता। ना किसी टेंपल में, ना मॉस्को में, ना चर्च में, कहीं पे भी क्या है, पॉलिटिकल लीडर है वो अपने क्या है, पार्टी को प्रमोट करने के लिए वहाँ वर्शिप प्लेस पे नहीं जा सकता। एंड यूज़ गवर्नमेंट व्हीकल एयर एंड ऑफिशियल फॉर इलेक्शन, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कंपेन करने के लिए व्हीकल यानी कि गवर्नमेंट के व्हीकल हैं, गवर्नमेंट एयरक्राफ्ट है या ऑफिशियल बिल्डिंग है, उनको यूज़ नहीं कर सकता। अगर उसको करना है तो अपनी पर्सनल कोई भी प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकता है, लेकिन गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी का यूज़ करना बिल्कुल बैन है। And once elections are announced, ministers shall not lay foundation stone of any project, take any big policy decision. यानी इलेक्शन अनाउंस होने के बाद कोई भी मिनिस्टर किसी भी पर्सन पे, किसी भी प्रोजेक्ट पर कोई भी क्या है डिसीजन नहीं ले सकता या कोई भी प्रॉमिस नहीं कर सकता, कोई बिग पॉलिसी डिसीजन पे क्या है, पॉलिसी उसको प्रॉमिस नहीं कर सकता कि ये ऐसा बनवाएंगे ही बनवाएंगे या ऐसा करवाएंगे ही करवाएंगे।
ठीक है, यानी कि क्या है, वो बड़े बड़े कोई भी पॉलिसी डिसीजन की फॉर्मेशन नहीं कर सकता, किसी से कोई भी प्रॉमिस नहीं कर सकता। एंड द रूलिंग पार्टी कैन नॉट मेक एनी प्रॉमिस टू प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटी, और जो रूलिंग पार्टी है, दोस्त पार्टी हु रन द कंट्री, रूलिंग पार्टी है, वो किसी भी पब्लिक फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए किसी से प्रॉमिस नहीं करेगी, यानी उनको क्या है, वादों के आधार पर किसी से भी वोट नहीं लेंगे, कोई भी प्रॉमिस नहीं किया जाएगा। प्रॉमिस ऐसा नहीं है कि फिक्स नहीं है कि वो ऐसा पब्लिक फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी या नहीं की जाएगी, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पे कि वो जो उन्होंने जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड की जानी चाहिए या नहीं की जानी। तो दीज आर सम फीचर्स ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट इन इलेक्शन। एंड नेक्स्ट, पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोटर। एंड फर्स्ट अब इलेक्शन कंपेन, लोगों ने क्या है, अपील की वोटिंग के लिए कि आप हमें वोट दो। वकील क्या 2 वीक्स का टाइम प्रोवाइड किया जाता है, कोड ऑफ कंडक्ट को यूज़ किया जाता है, इलेक्शन लॉज को फॉलो किया जाता है। और फिर लास्ट जो स्टेप है इलेक्शन प्रोसीजर का, वो है द पोलिंग एंड द काउंटिंग ऑफ वोटर्स। And the final stage of an election is the day when the voter cast or poll their vote. That day is usually called the election day. Means the final, means the last procedure of election is polling, and in this day voter cast or poll their vote, and this day is called election day. And on the election day, every person whose name is on the voter list can go to a nearby polling booth situated usually in local school on a government offices. Okay, and the इलेक्शन डे जब होता है, जब एवरी पर्सन जिसका भी नाम वोटिंग लिस्ट में होता है, वो क्या करता है, पोलिंग बूथ में जाता है। पोलिंग बूथ वो होता है जहाँ पे क्या है, वोटिंग होती है। और ये जो पोलिंग बूथ है मोस्टली क्या होता है, लोकल स्कूल या गवर्नमेंट ऑफिस में सिचुएटेड किए जाते हैं। तो इसलिए क्या है, जो है अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल रेफरेंस है, जो भी पर्सन वोटर लिस्ट में अबव 18 ईयर, सबको क्या है, पोलिंग बूथ में जाना पड़ता है वहाँ, और जो है वहाँ जाके वोटिंग करनी पड़ती है। एंड वंस द voters goes inside booth, the election official identified her, put a mark on her finger and allow her to cast her vote. और इसके बाद क्या है, जैसे वोटर क्या होता है, बूथ में जाता है या पोलिंग बूथ में जाता है, वहाँ उसको क्या है, आइडेंटिफाई किया जाता है उसके अकॉर्डिंग टू देयर आधार कार्ड, देयर एनी आइडेंटिटी कार्ड, एंड हर पुट ए मार्क ऑन फिंगर, उसके क्या है, फिंगर पे एक मार्क लगाया जाता है ब्लैक कलर से। एंड अलाउ हर टू कास्ट हर वोट, उसको अलाउ किया जाता है वो जिसको भी वोट देना चाहे उसको वोट दे सके। An agent of each candidate means is allowed to sit inside the polling booth and ensure that the voting takes place in a fair way. और एजेंट यानी पॉलिटिकल पार्टी के डिफरेंट एजेंट्स होते हैं, उनको अलाउड किया जाता है कि वो पोलिंग बूथ में रहें और ये इंश्योर करें, ये चेक करें कि जो है सभी है वोटिंग वो प्रॉपर तरीके से दे रहे हैं, नहीं दे रहे, किसी को उनको प्रेशराइज तो नहीं किया जा रहा है या किसी को पैसे तो नहीं दिए जा रहे, यानी उनको क्या है, प्रॉपर चेकिंग के लिए क्या है, पॉलिटिकल लीडर के एजेंट वहाँ पे क्या होते हैं, बैठे होते हैं। दोनों पार्टी के, रूलिंग पार्टी के भी, अपोजिट पार्टी, दोनों पार्टी के वहाँ पे इलेक्शन एजेंट्स वहाँ बैठे होते हैं और वो चेक करते हैं कि इलेक्शन वो प्रॉपर वे में हो रहा है या नहीं हो रहा। नेक्स्ट, बैलेट पेपर। बिफोर द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन in election used ballot paper, and a ballot paper is a sheet of paper on which the names of contesting candidate along with party name and symbol are issued. Ballot paper होता है एक शीट, एक पेपर शीट होती है जिसमें क्या है, उस कंटेस्ट जो इलेक्शन कैंडिडेट है उसका नाम लिखा जाता है, पार्टी का नाम और सिंबल उस पर इशू किया जाता है ताकि वो क्या है, एक पेपर दिया जाता है जिसमें प्रॉपर कैंडिडेट का नाम, सिंबल और सब कुछ क्या है उस पर लिखा जाता है। ईवीएम मशीन आने से पहले क्या है, बैलेट पेपर का ही क्या किया जाता था, यूज़ किया जाता था। एंड बट नाउडेज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आर यूज टू रिकॉर्ड वोट्स। लेकिन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का यूज़ होने के बाद द मशीन शो द नेम ऑफ कैंडिडेट एंड द पार्टी सिंबल ऑल्सो,
एंड अलॉटेड बाय इलेक्शन ऑफिशियल। जो भी सिंबल्स और जो आपकी सिंबल्स हैं जो प्रोवाइड किए इलेक्शन कमीशन से में, वो सारे ईवीएम मशीन में शो किए जाते हैं। उसमें कैंडिडेट का नाम होता है, सिंबल होता है, वो सारे शो किए जाते हैं और बाद में जिसको वोट देना उसको क्या किया था उस बटन पे प्रेस किया जाता है। एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मीन दोज कैंडिडेट who do not in any party, दे आर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट में जो पर्सन किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करता, वो सिंगल है, वो अपने इंडिपेंडेंट ही क्या है, इलेक्शन में क्या हुआ है, इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है। एंड दे टू हैव देयर ओन सिंबल, उसका खुद का भी सिंबल होता है, अलॉटेड बाय द इलेक्शन ऑफिशियल। इलेक्शन कमीशन के द्वारा भी उसको क्या है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में क्या है, उसको भी पावर दी जाती है, उसको भी सिंबल प्रोवाइड किया जाता है। एंड ईच वोटर हैज़ टू प्रेस द बटन अगेंस्ट द नेम ऑफ द कैंडिडेट शी और ही वांट्स टू वोट फॉर। और जो वोटर्स हैं उनको क्या है, पावर दी जाती है कि वो जिस भी कैंडिडेट को वोट देना चाहते हैं उसी वोटर के आगे क्या है, उसी कैंडिडेट के आगे क्या है, जो बटन उसको प्रेस कर दिया जाता है और उसके लिए क्या है, वोट दिया जाता है। एंड वोटर्स वोटिंग होने के बाद, पोलिंग होने के बाद जो लास्ट स्टेप है वो है काउंटिंग ऑफ वोट्स। वोटर्स काउंटेड आफ्टर द पोल्स। पोलिंग होने के बाद जो लास्ट स्टेप है वो है वोटिंग काउंटिंग, यानी जो भी वोटिंग हुई है उसको काउंट करना। एंड वंस द पोलिंग इज ओवर ऑल द ईवीएम आर सील्ड एंड टेकन टू ए सिक्योर प्लेस। और पोलिंग होने के बाद जो ईवीएम मशीन है, पूरे इंडिया में जो ईवीएम मशीन है उनको क्या है, सील्ड कर दिया जाता है और उनको सिक्योर प्लेस पे ले जाया जाता है और वहाँ पे सभी जो ईवीएम मशीन उनको इकट्ठा रखा जाता है। एंड ए फ्यू डेज लेटर ऑन फिक्स डेट, और फिक्स डेट की जाती है, वहाँ पे ईवीएम मशीन को खोला जाता है एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में से और ओपन किया जाता है और हर एक कैंडिडेट की जो भी उनको वोटिंग मिली उनको क्या है, काउंट किया जाता है by election commission। and the candidate who score the highest number of votes from a constituency is declared elected। और जो भी जिस भी कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोटिंग आते हैं, सबसे ज़्यादा वोट्स मिलते हैं, उसको वहाँ का क्या है, इलेक्टेड क्या है, इलेक्टेड बनाया जा, डिक्लेयर किया जाता है कि यहाँ इस वाले कॉन्स्टिट्यूंसी से ये वाली पार्टी क्या हुई है, विन हुई है, ये वाला जो लीडर है वो क्या हुआ है, इलेक्ट हुआ है या विन हुआ है। उसके बाद है इन ए जनरल इलेक्शन द काउंटिंग ऑफ द वोटर्स इन ऑल द कॉन्स्टिट्यूंसी यूजुअली टेक प्लेस एट द सेम टाइम ऑन द सेम डे। और जनरल इलेक्शंस जब होते हैं उसमें क्या काउंटिंग मोस्टली क्या होती है, एक ही जगह होती है और सेम डे पे ही क्या होती हैं, हर जगह एक जगह की जाती हैं ताकि सबको क्या मिले, सबको इकट्ठा क्या रिजल्ट प्रोवाइड किया जा सके और रिजल्ट भी एक ही दिन ही क्या, फाइनल रिजल्ट एक दिन ही क्या है, डिक्लेयर किया जाता है। Within a few hours of counting all the result are declared। और कुछ ही काउंटिंग के कुछ ही घंटों के बाद क्या है, डिक्लेयर किया जाता है। एंड इट बिकेम क्लियर एज टू हु विल फॉर्म द नेक्स्ट गवर्नमेंट। और ये डिक्लेयर किया जाता है कि नेक्स्ट इलेक्शन में कौन सी पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करेगी, यानी कौन सी पार्टी विन हुई है, यानी जिस पार्टी को 543 में से सबसे ज़्यादा मेजोरिटी जिस पार्टी को मिली है वही पार्टी क्या करेगी, गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। एंड द टेलीविज़न चैनल, रेडियो एंड न्यूज़पेपर रिपोर्ट दिस इवेंट। और इसमें क्या है, लगातार क्या है, न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, रेडियो में क्या है, हमें इलेक्शन से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज़ हमें मिलती रहती हैं जो ये बताते हैं कि कौन सी पार्टी विन हो रही है, कौन सी पार्टी को मेजोरिटी मिली है और मेजोरिटी के बेस पे ही हम क्या किया जाता है, फिर गवर्नमेंट फॉर्म की जाती है। ओके स्टूडेंट, तो दीज आर द प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन। फर्स्ट इज इलेक्ट्रो कॉन्स्टिट्यूंसी, सेकेंड इज रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी, थर्ड वोटर लिस्ट, फोर्थ नॉमिनेशन फॉर कैंडिडेट, फिफ्थ इलेक्शन कैंपेन एंड सिक्स्थ इज polling and voting, counting of votes। So these are the procedure of election। And the student, today your homework solution: how many seats are reserved for women at local bodies? And you know 1/3 of the total seats are reserved in rural and urban local bodies for women candidates। And what is the another name of voters list? It is called electoral roll। And question number 3, how and by whom is the voter list prepared? And the list which contains a particular of eligible voter is called the electoral roll or voter list, and the voter list is prepared by the Election Commission of India। Answer number 2, all the citizen aged 18 years and above the eligible to cast their vote in an election। Question number 3, record of name, father name, address and gender of the voters are duly prepared। It is the responsibility of the government to get the name of all the eligible voter put on the voter
list. Question number 4. What are the reserve constituency, and explain the concept of reservation seat by giving any three suitable arguments. Some constituency are reserved for people who belong to scheduled caste and scheduled tribes. In scheduled caste reserved constituency, only someone who belong to SC can contest for election. An argument for distribution of the concept, the constitution maker were worried that in an open electoral competition, certain weaker section may not stand a good chance to get elected to Lok Sabha and State Legislative Assembly. Second, they may not have the required resources, education and contact and win election against other. Question number 5. How does a person file nomination paper? Answer is, every person who wishes to contest an election has to fill a nomination form and give some money as a security deposit. Question number 6. What are the legal declaration of a party candidate? Question number first. Point number first. Serious criminal cases pending against the candidate. Point second. Detail of the assets and liabilities of the candidate and his or her family. Point number 3, education qualification of the candidate, and these are the legal declaration of a party candidates. Today your homework, revise chapter and do following question. First, who is responsible for free and fair election in India? Second, what is polling booth? Third, what is election code of conduct? Fourth, what is ballot paper, and name the machine by which this paper have been replaced. And question number 5, how does an election laws regulate campaign? And question number 6, explain the election procedure. Okay student, thank you, and all question done in your fair notebook. Thank you very much.